So here today we are going to see chemistry of antibacterial drugs. First we will see the sulfur drugs, then we'll see the quinolone antibiotics, and then we'll see the your penicillins. So you might have seen the PDF which is already sent in your group yesterday. Yesterday I was sending the group in the PDF. So these notes are not in the important points from medicinal chemistry regarding your antibiotics. ठीक है, वैसे भी मेडिसिनल केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें होती है लेकिन सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता है. So only few things are important in the medicinal chemistry, particularly the classification, then SAR, that is structure activity relationship, then structure of drug, then few important things about the each and every molecule. So first we will see sulfonamides. Okay, so we have seen the sulfonamides in pharmacology as well. Okay, so we just try to recall the sulfonamides. So sulfonamides are the drugs. आप थोड़ा सा माउस के ऊपर थोड़ा फोकस करो. So first basic structure of your sulfonamides. ठीक है. So basic structure क्या होता है sulfonamide का? What is the basic structure? So as the name indicate, it is nothing but the sulfo plus amide. Sulfonamides. Sulfo plus amide. Sulfonamides. So it will have all sulfonamides will have a common structural feature. कि हर एक सल्फोनामाइड्स में स्ट्रक्चरल फीचर कॉमन होगा. कौन सा? सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर सल्फोनामाइड्स. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर सल्फोनामाइड. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि इसमें देखो यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग है. पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनामाइड. पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनामाइड्स. पैरा अमाइनो बेंजीन SO2NH. तो SO2NH वाला जो ग्रुप है SO2NH जो सल्फा मिडो ग्रुप है इसको बोलेंगे सल्फा मिडो ग्रुप. ओके, तो SO2NH जो है उसको बोलेंगे सल्फा मिडो ग्रुप. ओके, और जो दूसरा ग्रुप है उसको बोलेंगे अमाइनो ग्रुप. सो sulfonamides are made up of three structural features. First one is the para amino group, then benzene ring, and then sulfamido group. These are the three things. Sulfonamides में आपका क्या होगा? Structural feature of sulfur drugs. So here will be amino group, here will be amino group plus benzene ring and then sulfamido group. Okay, so this will be the common feature for all sulfonamides. Okay, so amino group is numbered as number 4 and amino group which is in a sulfamido group. ठीक है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है सल्फामिडो ग्रुप का नाइट्रोजन उसको नंबर 1 बोलेंगे और जो पैरा पोजीशन पे अमाइनो है उसको नंबर 4 बोलेंगे. ठीक है, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सल्फामिडो ग्रुप नंबर्ड एज 1 and नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द अमाइनो ग्रुप नंबर्ड एज 4. सो डिपेंडिंग अपॉन द सब्स्टिट्यूशन, कौन से सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे है. सो sulfur drugs are classified chemically in different classes. So N1 substituted sulfonamides, N4 substituted sulfonamides. So अगर सब्स्टिट्यूशन जो भी है साइड चेन का अगर सल्फामिडो ग्रुप पे है तो उसको बोलेंगे N1 substituted sulfonamide. अगर सब्स्टिट्यूशन अगर आपका अमाइनो ग्रुप पे है तो उसको बोलेंगे N4 substituted aminoamides sulfonamides. अगर दोनों पे है तो उसको बोलेंगे N1 and N4 substituted sulfonamides. So chemically they are classified as N1 substituted, N4 substituted, and both N1 and N4 substituted. So actually there are different way to classify these sulfonamides. ठीक है, so we will see one by one. First way is the classification of sulfur drug. So clinical classification हो गया और classification of sulfur drug. First, so depending upon the kinetics, depending upon the pharmacokinetics of drug. First one, drugs absorbed and excreted rapidly. कि ऐसे कौन से ड्रग्स है जो उसका जिसका एब्सॉर्प्शन फास्ट होगा और एक्सक्रीशन भी फास्ट होगा. कौन से फॉर एग्जांपल सल्फामेथोक्साजोल, सल्फोक्साजोल, सल्फापिरिडीन. सो सल्फर ड्रग का कॉमन फीचर क्या होता है कि आपको यहाँ पे सल्फोनामाइड्स में क्या रहेगा, दो ग्रुप्स रहेंगे. एक तो उसको बोलेंगे पैरा अमाइनो सल्फानिलामाइड. ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है आपको उसको बोलते हैं पैरा अमाइनो सल्फानिलामाइड. ठीक है, सो पैरा यहाँ पे देखो पैरा अमाइनो सल्फानिलामाइड, सल्फोनिलामाइड. ये इसको जो बोलते हैं सल्फामिडो ग्रुप बोलते हैं, इसको अमाइनो ग्रुप बोलते हैं. ठीक है, सो सल्फामिडो ग्रुप में जो नाइट्रोजन है अगर उसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन है तो उसको बोलेंगे N1 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड्स. जो अमाइनो ग्रुप है उसका जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर अगर सब्स्टिट्यूशन है तो उसको बोलेंगे N4 substituted sulfonamides. So there are different ways to classify these sulfonamides. So first we'll see depending upon the pharmacokinetics. So drugs absorbed, excreted rapidly. So these are also known as the systemic sulfonamides. Okay, so those drugs from sulfur drugs
category, those are absorbed rapidly and excreted rapidly. Those are known as systemic sulfonamides. So systemic sulfonamides क्या होते हैं कि ये जो कैटेगरी का ड्रग है ये जल्दी उसका एब्सॉर्प्शन होगा, जल्दी उसका एक्सक्रीशन होगा. फॉर एग्जांपल सल्फामिथोक्साजोल, सल्फिक्साजोल, देन सल्फापिरिडीन, देन सल्फाडायाजिन. सो ये ड्रग्स जो है रैपिडली एब्सॉर्ब होंगे आपके जीआईटी से और उसका एलिमिनेशन भी रैपिड होगा. ठीक है. So these are the rapidly absorbed and rapidly eliminated drug known as systemic sulfonamides. Next class कौन सा है? Drug which are poorly absorbed. Drug which are poorly absorbed मतलब उसका absorption कम होगा as compared to above. ठीक है. They are known as non-systemic sulfonamides. उनको क्या बोलते हैं? Non-systemic sulfonamides. They are also known as non-systemic or locally acting sulfonamides. Locally acting drugs होते हैं वो जो जिनका एब्सॉर्प्शन बहुत ही कम होता है आपके जीआईटी में, उसको बोलते हैं ड्रग्स पुअरली एब्सॉर्ब फ्रॉम जीआईटी. एंड दोज आर आल्सो नोन एज अ लोकली एक्टिंग ड्रग. जो जिनका एब्सॉर्प्शन जल्दी होता है, एक्सक्रीशन जल्दी होता है, उनको बोलते हैं सिस्टेमिक सल्फोनामाइड्स. उसका एग्जांपल सल्फामेथोक्साजोल, सल्फिक्सोक्साजोल, देन सल्फापिरिडीन एंड सल्फाडायाजिन. देन नेक्स्ट क्लास इज योर ड्रग दोज व्हिच आर पुअरली एब्सॉर्ब फ्रॉम जीआईटी. फॉर एग्जांपल they are known as a locally acting drug. Locally acting drug. ठीक है. So for example here sulfasalazine is there, thialyl sulfathiazole is there. Okay, sulfasalazine, thialyl sulfathiazole. So those are known as a systemic sulfonamides. ठीक है. ये हो गए आपके दो. Next class is known as a drug used topically. So topically for example in case of conjunctivitis, अगर आपके आई में इन्फेक्शन हो गया तो उसको बोलेंगे कंजक्टिवाइटिस. सो दीज काइंड ऑफ ड्रग आर यूज्ड टॉपिकली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कंजक्टिवाइटिस, देन वजाइनल बैक्टीरियल इन्फेक्शन. सो दोज आर नोन एज अ ड्रग्स यूज्ड टॉपिकली. फॉर एग्जांपल मेफेनाइड, सल्फासेटामाइड, देन सिल्वर सल्फाडायाजिन. तो क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए कि कौन से ड्रग जल्दी एब्सॉर्प्शन होता है, किस ड्रग का कम एब्सॉर्प्शन होता है, कौन से टॉपिकली यूज करते हैं, कौन से सिस्टेमिकली यूज करते हैं. ओके. सो सिस्टेमिकली जो ड्रग यूज करते हैं सल्फा ड्रग, उसका एब्सॉर्प्शन भी जल्दी होता है, एक्सक्रीशन भी जल्दी होता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल सल्फामिथोक्साजोल, सल्फिक्साजोल, सल्फिऑक्साजोल, देन सल्फिपिरिडीन, सल्फारिडीन, देन सल्फाडायाजिन. देन पुअरली एब्सॉर्ब फ्रॉम जीआईटी, जो जिसका एब्सॉर्प्शन कम होता है वो उनको बोलते हैं लोकली एक्टिंग ड्रग्स. फॉर एग्जांपल सल्फासेलाजिन एंड थियालिल सल्फाथायाजोल. उसमें एक और भी आता है सक्सिनिल सल्फाथायाजोल. तो ये these are known as a non-systemic or poorly absorbed drug. The next one is a chemical classification. Okay, this is the classification depending upon the pharmacokinetics of drug. Now chemical classification. So chemically they are classified depending upon the substitution. Substitution कहाँ पे है उसके ऊपर, उसके बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन होता है. ठीक है. सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे है उनका, जैसे मैंने बोला है कि जो सल्फामिडो ग्रुप है उसका जो नाइट्रोजन है उसको बोलेंगे अपन N1 एंड जो अमाइनो ग्रुप का नाइट्रोजन है उसको बोलेंगे अपन N4. सो डिपेंडिंग अपॉन द सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन और सब्स्टिट्यूशन ऑन व्हिच नाइट्रोजन, दे आर क्लासिफाइड एज N4 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड्स. N4 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड मतलब ये जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ पे है ना. तो N4 सब्स्टिट्यूट. फॉर एग्जांपल प्रोंटोसिल एंड सुलोकोप्टिसिन, ये दो ड्रग है. दीज आर नोन एज N4 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड्स, प्रोटोनसिल एंड सुलोकोप्टिसिन. नेक्स्ट वन इज योर N1 सब्स्टिट्यूट. ठीक है. N1 मतलब ये नाइट्रोजन, इसके ऊपर अगर सब्स्टिट्यूशन होगा तो उसको बोलेंगे N1 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड्स. वो कौन से, फॉर एग्जांपल सल्फाडायाजिन है आपका, सल्फासेटामाइड है, सल्फाडिमिडिन है. ठीक है. सो N1 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड्स, सल्फाडायाजिन, सल्फासेटामाइड एंड सल्फाडिमिडिन. ये हो गया N1 N4 सब्स्टिट्यूट. अभी N4 जो है वो अमाइनो ग्रुप है तो इसके लिए उसको बोलते हैं N4 अमाइनो सब्स्टिट्यूट कभी कभी. सो डिफरेंट बुक में डिफरेंट दिया है. किसी बुक में सिर्फ N4 सब्स्टिट्यूट सल्फा ड्रग्स दिया है, किसी में दिया है N4 अमाइनो सब्स्टिट्यूट और किसी में दिया है N1 अमीडो सब्स्टिट्यूट. क्योंकि N1 पोजीशन पे अमीडो ग्रुप है, N4 पे अमाइनो ग्रुप है. ठीक है. both N4 and N1 substituted sulfonamides, जैसे जिसके दोनों के ऊपर भी सब्स्टिट्यूशन है N1 एंड N4. फॉर एग्जांपल उसका एग्जांपल है सक्सिनिल सल्फाथायाजोल एंड थियालिल सल्फाथायाजोल. ठीक है. इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है सक्सिनिल सल्फाथायाजोल, थियालिल सल्फाथायाजोल. ये याद रखो, ये these are nothing but the both N1 and N4 substituted sulfonamides chemically. Okay. Next class will be there
known as a non-anilinosulfonamides. Non-anilinosulfonamides. एनिलिनो मतलब क्या, बेंजीन रिंग प्लस अमीनो ग्रुप, ठीक है। बेंजीन रिंग जहाँ पे है और उसको अगर अमीनो ग्रुप है तो उसको बोलेंगे एनिलिन। फॉर एग्जांपल आपका ये पार्ट वाला, ये वाला पार्ट, N4 वाला पार्ट, सिर्फ ये SO2 NH नहीं, N4 वाला पार्ट, बेंजीन रिंग प्लस अमीनो ग्रुप, उसको बोलते हैं एनिलिन, ठीक है। अगर नाइट्रोजन NH2 नहीं है तो उसको बोलेंगे बेंजीन। सो नॉन एनिलिनो मीन्स वहाँ पे अमीनो ग्रुप नहीं रहा, non-anilinosulfonamides without amino group. So for example, mepenide. Mepenide is the drug. So that is a non-anilino sulfonamides. So chemically they are classified as N1 substituted, N4 substituted, both N1 and N4 substituted and non-anilino sulfonamides. उसके example से याद रखो बस, बाकी कुछ नहीं उसमें। Next one is a clinical classification. Clinical मतलब depending upon the use. Okay, depending upon the use, sulfa drugs are classified as a use. Okay, depending upon their use. So first one is antibacterial drugs. Antibacterial drugs कौन से? For example, sulfacetamide, sulfadiazine, sulfadimidine, then sulfamethoxazole. Okay, so these are the antibacterial sulfa drugs. ठीक है, sulfacetamide, sulfadiazine, sulfadimidine, sulfamethoxazole. Then ऐसा नहीं कि सिर्फ सल्फा ड्रग आपको एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी दी दिखाते हैं। सो सल्फा ड्रग्स along with antibacterial activity, there are other sulfur drugs which have different pharmacological activity. Like example, so there are few examples of hypoglycemic drug which are the basically they are a sulfur drug. Okay, for example, oral hypoglycemic sulfur drugs, example tolbutamide. Tolbutamide जो होता है वो sulfur drug होता है and that is a hypoglycemic or used in the treatment of diabetes. The next one is a diuretic sulfur drugs. For example, furosemide, जो आपका furosemide होता है that is a sulfur drug. Okay, then chlorothalidone diuretic है, pimetanide ये भी क्या है, diuretic है। both all these three are belongs to sulfur drug category. Okay, they are antibacterial sulfur drug, they are oral hypoglycemic sulfur drug, they are a diuretic sulfur drug. Okay, now next we'll see what is the history behind this sulfur drug. Okay, so sulfur drug का आइडेंटिफिकेशन कैसे हुआ है? so सबसे पहले एक डाई था, डाई प्रोटोनसिल रेड, प्रोटोसिल रेड, ये जो डाई था जहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, जहाँ पे माउस में घुमा रहा हो वहां पे देखो। सो प्रोटोनसिल रेड वाज द डाई, प्रोटोनसिल रेड वाज द कलर, ठीक है। उसको यूज किया, उसको यूज करने के बाद एक्चुअली इसका क्या होता था कि प्रोटोनसिल रेड वाज द डाई यूज्ड इन द इन्फेक्शन, but later it was observed, or later it was concluded that the protonsil red was converted in the body into सल्फानिलामाइड, ठीक है। तो प्रोटोनसिल रेड जो है वो डाई यूज करते थे एज एंटीबैक्टीरियल ड्रग। तो बाद में उसका मेटाबॉलिक स्टडी और बाद में उसको पता चला कि ये प्रोटोनसिल रेड बॉडी में जाके सल्फानिलामाइड बनता है, ठीक है। तो सल्फानिलामाइड इज द एक्टिव ड्रग, ठीक है। सो प्रोटोनसिल रेड इज अ प्रो ड्रग ऑफ सल्फानिलामाइड, याद रखो। सो प्रोटोनसिल रेड आफ्टर मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड टू योर सल्फानिलामाइड प्लस दिस triaminobenzene plus sulfanilamide. So protonsil red is converted into these two metabolite in the body. Out of this, sulfanilamide is a active and all sulfur drugs are the derivative of this sulfanilamide, ठीक है। जितने भी सल्फर ड्रग्स है वो सब इसके डेरिवेटिव सल्फानिलामाइड के, ठीक है। तो ये ट्राइअमिनोबेंजीक एसिड छोड़ दो उसको, वो बाद में एक्सक्रीट हो जाता है, लेकिन एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी कौन सा है, इसका है सल्फानिलामाइड। सो ऑल दीज ड्रग्स आर द डेरिवेटिव ऑफ सल्फानिलामाइड। सल्फर ड्रग्स में दो कैटेगरी के ड्रग होते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ सल्फानिलामाइड एंड डेरिवेटिव्स ऑफ 4,4 डायमोनोफिनाइल सल्फोन, ठीक है। तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो एंटी ट्यूबरकुलर और एंटी लेप्रोटिक ड्रग है डेप्सोन डाइफिनाइल डायमोनो डाइफिनाइल सल्फोन, सो दैट इज आल्सो सल्फा ड्रग, ठीक है। सो 4,4 डायमोनो डाइफिनाइल सल्फोन जो है उस कैटेगरी का कौन सा ड्रग है आपका, डेप्सोन, ठीक है। ये देखो 4,4 अमीनो फिनाइल सल्फोन, ठीक है। तो एग्जैक्टली सिमिलर स्ट्रक्चर आपको वो साइड पे भी, तो दैट्स व्हाई 4,4 डायअमीनो डाइफिनाइल सल्फोन, दैट इज अ डेप्सोन, इसका नाम है डेप्सोन, डायअमीनो डाइफिनाइल सल्फोन। बट सल्फा ड्रग जो है एंटीबैक्टीरियल ड्रग आपका, ये भी एंटीबैक्टीरियल है लेकिन लिप्रोसी में यूज करते हैं, इसलिए इसको इसको नहीं डिस्कस करेंगे। सल्फानिलामाइड इज द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर ऑल काइंड ऑफ सल्फर ड्रग्स, ठीक है। तो जो सल्फामिडो ग्रुप है उसका जो नाइट्रोजन है उसको नंबर 1 एंड अमीनो ग्रुप जो है पैरा पोजीशन के उसको बोलेंगे N4। नाउ स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ सल्फर ड्रग, कहाँ पे कौन सा सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या एक्टिविटी चेंज होगा, ये इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आ सकता आपको, लेकिन अगर आ भी गया तो आपको आना चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट, सल्फानिलामाइड skeleton is important for activity and sulfur should be directly attached to the
बेंजीन रिंग। यहाँ पे देखो ये जो है सल्फोनिलमाइड स्केलेटन इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्टिविटी एंड सल्फर शुड बी डायरेक्टली लिंक्ड विद द बेंजीन रिंग। जो आपने सल्फोनिलमाइड का स्ट्रक्चर देखा है, ठीक है, ये तो इसमें क्या है कि ये सल्फोनिलमाइड रिंग जो है इतना पूरा, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। मतलब ये रिंग नहीं होगा तो एक्टिविटी नहीं दिखाएगा, ठीक है। एंड सल्फर शुड बी डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग। देखो यहाँ पे डायरेक्टली सल्फर क्या है, अटैच है। सभी सल्फोनामाइड्स के डेरिवेटिव में यही रिंग रहेगा, ठीक है। सल्फोनिलमाइड रिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी एंड सल्फर शुड बी अटैच्ड टू द डायरेक्टली टू द बेंजीन रिंग। देन इन केस ऑफ N1 सल्फर ड्रग्स, N1 सब्स्टिट्यूटेड सल्फर ड्रग्स जो है उनमें क्या होता है कि N1 सल्फर ड्रग डिपेंडिंग अपॉन द सब्स्टिट्यूशन एट अमीडो ग्रुप। N1 मतलब अमीडो ग्रुप, ठीक है। तो अमीडो ग्रुप के ऊपर जो सब्स्टिट्यूशन होगा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सो मोस्टली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो रहेंगे, so that will increase the activity of molecule. Okay, so electron donating group at N1 position they can increase the activity. For example heterocyclic rings जैसे आपका बेंजीन रिंग होगा या फिर पिपेराजिन रिंग होगा या फिर पायरॉल फ्यूरॉन आइसोक्साजोल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। so these rings will provide extra electrons and that because of that electron donating nature of that ring, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रिंग अगर आपने वहां पे ये N1 पोजीशन पे डाला तो एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा करेंगे वो तो एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। बट सिंगल बेंजीन रिंग अगर आपने डाला तो दैट विल कन्वर्ट इनटू टॉक्सिक कंपाउंड एज कंपेयर टू अदर हेटेरोसाइक्लिक रिंग। मतलब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स रखना है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट रिंग्स आते हैं। जैसे आपका हेटेरोसाइक्लिक रिंग, तो हेटेरोसाइक्लिक रिंग सेफ है एज कंपेयर टू बेंजीन रिंग। अगर आपने बेंजीन रिंग डाल दिया सिर्फ तो उसका टॉक्सिसिटी ज्यादा होता है। ओके, सो इन केस ऑफ N1 सल्फर ड्रग्स डिपेंडिंग अपॉन द सब्स्टिट्यूशन एट अमीडो ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स will increase the activity. Heterocyclic substituent will give you potent derivative. Heterocyclic substituent will give you potent derivative. मगर यहाँ पे मैंने बेंजीन की जगह आपने पिरिडीन यूज किया या पायरेजिन यूज किया या फिर पिप्रेजिन यूज किया तो डेरिवेटिव पोटेंट बन जाएंगे, ठीक है। Single benzene ring at N1 will give you more toxic compound. Single benzene ring at N1 will give you more toxic compound than cyclic ring analog, मतलब heterocyclic, ठीक है। Then next point, three amino group should be present at the para position. Three amino group should be present at the para position. ये जो three amino group है that is present in the para position, ठीक है। अगर आपने ये यहाँ पे मेटा पे या फिर यहाँ पे ऑर्थो पे या फिर मेटा पे डाल दिया तो that will become useless. Okay, so three amino group should be at a para position if ortho and meta substituted amino group will not have any antibacterial। अगर ये अमीनो ग्रुप आपने यहाँ से निकल के यहाँ डाल दिया 3 पोजीशन पे या 2 पोजीशन पे, that will be inactive. Okay, so three amino group is important for the activity. Substitution result in the inactive derivative or inactive prodrug। आप कर सकते हो यहाँ पे, अगर आप if you want to design a prodrug of your sulfonamides, so you can substitute this amino group with different acids, like in case of your succinyl sulfathiazole and in case of your thallyl sulfathiazole। मैं आपको बोलूंगा, उनका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा बाद में। तो both of these drugs succinyl sulfathiazole and thallyl sulfathiazole, बहुत सारे पॉइंट ऐसे कि मैं यहाँ पे नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हूँ, so try to note down it। So both succinyl sulfathiazole and thallyl sulfathiazole both are the prodrugs. They are converted into active metabolite in the body. So they are converted into sulfonamide inside the body. So thallyl जो होता है थैलिक एसिड का ईस्टर या फिर सक्सिनिक एसिड का ईस्टर, तो वो निकल जाता है, ठीक है, फर्टिलाइज होता है वो, बाद में आपका मेन जो सल्फोनामाइड है वो रिलीज होता है बॉडी में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिव फॉर्म ऑफ सल्फर ड्रग इज आयोनाइज्ड फॉर्म, ठीक है। सो जो भी सल्फर ड्रग्स है इसका आयोनाइज्ड फॉर्म जो है दैट इज एक्टिव, मींस ionized form of sulfur drug will have antibacterial activity only and maximum activity is seen in the pK range of 6.66 to 7.4. maximum activity is seen in the 6.66 to 7.4 जो pK range था dissociation constant, तो उसका जो maximum activity है सल्फर ड्रग का कि dissociation constant अगर 6.66 to 7.4 इसके रेंज में अगर होगा तो सबसे मैक्सिमम एक्टिविटी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी उसी रेंज में है। so that's why many drug which have pK value in range of this 6.66 7.4 they have been developed and nowadays they are used. Okay, nowadays in a clinical practice only few sulfur drugs are there
like sulfacetamide and all that, dapsone. So those are used. Rest of the drugs are not used clinically because availability of better options. उसके उसके लिए एज ए एंटीबैक्टीरियल बाकी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है, उसके लिए वो यूज करेंगे, सल्फर ड्रग्स अभी यूज नहीं करते। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? Substitution on benzene ring. Substitution on benzene ring gives inactive compound. Substitution on benzene ring, जो बेंजीन रिंग है वो इंटैक्ट होना चाहिए। उसमें अगर कोई आपने इधर उधर किया बेंजीन रिंग में, अगर उसमें आपने कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाल दिया या फिर मिथॉक्सी ग्रुप, सो दैट विल बिकम इनएक्टिव। सब्स्टिट्यूशन ऑन द बेंजीन रिंग गिव्स इनएक्टिव कंपाउंड। सब्स्टिट्यूशन ऑफ SO3H, that is known as sulfonic acid for the sulfamido group destroy the activity। जो सल्फामिडो ग्रुप होता है आपका N1, यहाँ पे क्या है? SO2NH है, ठीक है। SO2NH मीन्स SO2NH सल्फामिडो ग्रुप, ठीक है। अगर सल्फामिडो ग्रुप आपने सल्फोनिक एसिड से रिप्लेस किया, so that will give you inactive compound or that will destroy the activity। बट अगर आपने सल्फोनिक एसिड की बजाय सल्फिनिक एसिड डाला, SO2H डाला, okay, SO2H, so that will retain the activity again and acetylation of N4 position, मतलब सल्फिनिक एसिड at N1 position and acetylation मतलब acetyl group at N4 position, so that will give you some activity, but again that is a less active than original sulfur drug। Okay, sulfonamides binds to a basic centers of protein present in the bacterial cell। Okay, like sulfonamides binds to basic center like arginine, histidine, lysine of the protein binding group like alkyl alkoxyhalide। protein binding with the pharmacokinetics as well, ठीक है। ये सल्फर ड्रग में क्या होता है, सॉरी बैक्टीरियल का प्रोटीन है। यहाँ पे सल्फर ड्रग में क्या होता है कि आफ्टर एब्सॉर्प्शन ऑफ सल्फर ड्रग, सो एज दे आर आयोनाइज्ड, ठीक है, यहाँ पे आयोनाइज्ड फॉर्म में ही उसका एक्टिविटी है। सो बिकॉज ऑफ आयोनाइज्ड फॉर्म, सो आयोनाइज्ड फॉर्म बॉडी में नहीं होना चाहिए, ठीक है, रहता नहीं। दैट्स व्हाई इट इज हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं आपके अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, जैसे सेरुलोप्लाज्मिन हो गए, सो दे यूज टू बाइंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन। बट वो बाइंडिंग कैसे होता है? बाइंडिंग दैट इज बिकॉज ऑफ द बेसिक सेंटर इन द प्रोटीन लाइक अर्जिनिन, हिस्टीन, लाइसिन, ठीक है। जो लाइसिन, अर्जिनिन, हिस्टीन का जो अमीनो एसिड रेसिड्यू है आपका जो प्रोटीन का, उसके ऊपर जो ग्रुप्स है लाइक अल्काइल ग्रुप, अल्कोक्सी ग्रुप, हाइलाइड ग्रुप्स, वो उसको बाइंड करेंगे। and binding of sulfur drugs to the plasma protein will also affect the pharmacokinetics as well as pharmacodynamic properties। अपने आपको मालूम है कि binding of drug to the plasma protein, that drug will not be available for its action if drug is bound to a plasma protein, so it is not available for distribution also, it is not available for elimination also, it is not available for its action also, should be released in the free form। ओके, अगर प्रोटीन बाइंडिंग में वो रिलीज नहीं हुआ प्रोटीन बाइंडिंग से, तो फिर वो एक्टिविटी नहीं दिखाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज सल्फोनामाइड एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी एंड फार्माकोकाइनेटिक्स आर डिपेंडेंट ऑन द लिपिड सोल्युबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। सो इंक्रीज्ड लिपिड सोल्युबिलिटी विल इंक्रीज द हाफ लाइफ एंड एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। सो जो एंटीबैक्टीरियल सल्फर ड्रग्स है उसका एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड है? उसका लिपिड सोल्युबिलिटी के ऊपर। लिपिड सोल्युबिलिटी ज्यादा होगा तो उसका हाफ लाइफ भी ज्यादा होगा और एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी भी ज्यादा होगा। ओके, इट वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ योर सल्फर ड्रग्स, ठीक है। सल्फर ड्रग का सार इतना ही है, ज्यादा कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले देखेंगे अपन स्ट्रक्चर्स ऑफ सल्फर ड्रग। ओके, सो देयर आर डिफरेंट सल्फर ड्रग्स, ये सब इनिशियली सिंथेसाइज किए थे। ओके, नो वन मॉलिक्यूल इज यूज्ड इन द थेरापेटिक्स नाउअडेज। इसमें का कोई भी मॉलिक्यूल यूज नहीं होता है अभी, सिर्फ आपके स्टडी के लिए है। स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर ड्रग, फर्स्ट वन इज सल्फाक्लोमाइड, ठीक है। ये कॉमन स्ट्रक्चर होगा आपका सल्फोनिलामाइड का, ये कॉमन स्ट्रक्चर है। सल्फाक्लोमाइड मतलब यहाँ पे पिरिडीन रिंग बेंजीन रिंग प्लस क्लोरीन। ओके, सो सल्फाक्लोमाइड। देन सेकंड वन इज सल्फापिरिडीन, तो यहाँ पे पिरिडीन रिंग होगा आपका, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो सल्फोनिलामाइड यहाँ का स्ट्रक्चर, और ये पिरिडीन रिंग सल्फापिरिडीन। सो इट इज आल्सो टॉक्सिक ड्रग नॉट यूज्ड इन थेरेपेटिक्स। देन थर्ड वन इज सल्फाथायाजोल। ओके, सो सल्फाथायाजोल एज द नेम इंडिकेट, थायाजोल मींस इसमें क्या रिंग होगा? थायाजोल, ये देखो थायाजोल, सल्फर प्लस नाइट्रोजन, इसका सब्स्टिट्यूशन है सल्फाथायाजोल, ठीक है। सल्फाथायाजोल इट इज आल्सो टॉक्सिक नॉट यूज्ड इन थेरेपेटिक्स। नेक्स्ट वन इज सल्फासिटामाइड। सिटामाइड मतलब एसिटामाइड, यहाँ पे देखो एसिटामाइड टर्म है, एसिटामाइड, सल्फासिटामाइड। यहाँ पे एसिटामाइड मतलब क्या कि यहाँ पे जो
सल्फामिड ग्रुप है, उसके ऊपर एस्टेलेशन किया है। सल्फासेटामाइड इट इज यूज्ड फॉर लोकली फॉर आई इन्फेक्शन। सल्फासेटामाइड जो है वो ऑक्यूलर इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो पुराने समय में जो आई इन्फेक्शन होता था उस टाइम पे एक सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल एप्लीकेबल आता था सल्फासेटामाइड का, अभी क्लोरामफेनिकोल का था। नेक्स्ट वन इज सल्फर डायजीन। तो द नेम इंडिकेट डाई मींस टू, एजिन एजाम मतलब नाइट्रोजन है, जीन मतलब सल्फर डायजीन मतलब सल्फोनिलामाइड प्लस डायजीन रिंग। तो यहाँ पे डायजीन रिंग होगा तो सल्फर डायजीन। सो इट इज यूज्ड इन द मेनिंजाइटिस, जो ब्रेन का मेनिंजेस होता है उसका अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसमें यूज करते थे पहले, अभी नहीं। अभी भी देयर आर लॉट ऑफ बेटर ड्रग्स अवेलेबल, ओके, इसका यूज अभी नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज सल्फा डिमिडीन। सल्फा डिमिडीन, डायमिडीन, ठीक है, डायमिडीन सल्फा डिमिडीन मतलब सल्फर डायजीन जो है उसके उसी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपको। बाद में सिर्फ क्या करना है, 4 और 6 पोजीशन पे आपको मिथाइल ग्रुप ऐड करना है। 4 6 डायमिथाइल डायाजिन, 6 डायमिथाइल डायाजिन 2 यहाँ पे सल्फोनामाइड हो गया। बाकी इसका स्ट्रक्चर आप आईपैक नेम बाद में आप देख लेना, आईपैक नेम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग का दिया है मैंने। सो सल्फर ड्रग्स यूज्ड फॉर जीआईटी इन्फेक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे अमीबियासिस हो गया आपका, डायरिया हो गया इन केस ऑफ अमीबियासिस। सो उसमें सल्फर ड्रग कौन से यूज करते हैं? सो देयर आर 3 sulfur drugs, those are used for the GIT infection. For example, first one is sulfaguanidine, allyl sulfathiazole and succinyl sulfathiazole. सल्फागोनेडिन, यहाँ पे सल्फागोनेडिन मतलब गोनेडिनो ग्रुप होगा, देखो यहाँ पे गोनेडिनो ग्रुप। गोनेडिनो मतलब NH2 NH डबल बॉन्ड NH2 NH C डबल बॉन्ड NH and NH2. So this is the guanidine group. Okay, सल्फागोनेडिन मतलब गोनेडिन ग्रुप होगा। सक्सिनिल सल्फाथायजोल, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये नाइट्रोजन हो गया आपका 1, ठीक है, ये नाइट्रोजन हो गया आपका 1 का, इधर का नाइट्रोजन जो है वो 1 हो गया, इधर का 4। सो सक्सिनिल सल्फाथायजोल मतलब ये सल्फाथायजोल का स्ट्रक्चर है आपका, कौन सा, इधर वाला पार्ट जहाँ पे मतलब है सल्फाथायजोल, ठीक है, ये सल्फाथायजोल। और ये जो है ये है सक्सिनिक एसिड, COOH CH2 CH2 COOH, तो उसका ईस्टर होता है अमाइड ईस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड, तो सक्सिनिल सल्फाथायजोल। और ये बॉडी में जाके यहाँ से ब्रेक होगा, में उसका एक्टिव मेटाबॉलिट क्या बनेगा, सल्फाथायजोल। ओके, सक्सिनिल सल्फाथायजोल इज अ प्रोडक्ट आफ्टर मेटाबॉलिज्म इट इज कन्वर्टेड इनटू सल्फाथायजोल ओनली। ओके, देन नेक्स्ट वन इज थैलिल सल्फाथायजोल। ये भी ड्रग क्या है, थैलिल सल्फाथायजोल, इट इज अगेन ए प्रोड्रग। ये जो यहाँ पे जो थैलिक एसिड है, benzene ring plus COO minus and COO minus. Benzene ring, 2 additional carboxyl group that is known as thalic acid, and thalic acid ester of sulfathiazole is known as a thallyl sulfathiazole. Again it is a product, body में जाके यहाँ से break होगा और sulfathiazole release होगा. So these 2 drugs are a prodrug. Remember. Now we'll see the next. So these 3 drugs, sulfaguanidine, succinyl sulfathiazole, and succinyl sulfathiazole and thallyl sulfathiazole, they are used for the GIT इन्फेक्शन, मतलब अगर आपके पेट में इन्फेक्शन हो गया, स्टमक में इन्फेक्शन हो गया तो सुनिए सर, डिपेंडिंग अपॉन द, मैंने बोला है कि सल्फर ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट वे, डिपेंडिंग अपॉन द यूज, डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल यूज, डिपेंडिंग अपॉन द फार्माकोकाइनेटिक्स, डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर, डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अपन ने ऑलरेडी देखा है ये फार्माकोलॉजी में। तो short acting sulfur drugs, then intermediate acting sulfur drugs, long acting sulfur drugs, and then ultra long acting or extra long acting sulfur drugs. So short acting sulfur drug, for example sulfamethizole, ये एक हो गया short acting में। सल्फासोमिडीन ये एक हो गया सल्फासोमिडीन जैसा ही रहता है ये सल्फासोमिडीन। ओके, सल्फिक्सोजोल ऑक्जेजोल रिंग है इसमें, देखो ऑक्जेजोल रिंग। एंड इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स, इंटरमीडिएट मतलब थोड़ा सा उससे ज्यादा, ठीक है, टी हाफ वगैरह आपने देखा है ऑलरेडी फार्माकोलॉजी में। नाउ फर्स्ट वन इज दिस इंटरमीडिएट एक्टिंग। तो फर्स्ट वाज द शॉर्ट एक्टिंग, नाउ इंटरमीडिएट एक्टिंग। इंटरमीडिएट एक्टिंग कौन सा है, ये सल्फासोमिजोल, देन सल्फामिथोक्साजोल, ठीक है, these are the intermediate acting. Now next one is a long acting sulfur drugs. Acting कौन सा है आपका, सल्फामिथोक्सीडियाजिन,
पिरिडाइजिन नहीं है, तो सल्फा सल्फोनिलमाइड का ये स्ट्रक्चर हो गया पिरिडाइजिन, ये सल्फा मिथॉक्सी या मिथॉक्सी, इसके लिए मिथॉक्सी पिरिडाइजिन, मिथॉक्सी पिरिडाइजिन, सल्फा मिथॉक्सी पिरिडाइजिन, देन सल्फा डाइमिथॉक्सिन। तो यहाँ पे डाइमिथॉक्सी ग्रुप है पिरिडाइजिन में, तो इसको बोलेंगे सल्फा डाइमिथॉक्सिन। नेक्स्ट वन क्या है आपका, सल्फा मिथॉक्सी इथॉक्सी डायाजिन, सल्फा इथॉक्सी डायाजिन। तो आपका है सल्फा फिनाजोल, सल्फा फिनाजोल मतलब एजोल रिंग प्लस फिनाइल रिंग, फिनाजोल। चेन में क्या है, एजोल रिंग प्लस फिनाइल रिंग, तो एजोल रिंग के ऊपर फिनाइल रिंग, उसको फिनाजोल बोलेंगे। सल्फा लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनम, दिस वाज लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड। नाउ अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग, उससे भी ज्यादा टी हाफ है उसका, फॉर एग्जांपल सल्फिलिन, सल्फिलिन ये है सल्फिलिन, ठीक है, सल्फिलिन इज अल्ट्रा अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग। देन सल्फोरमिथॉक्सिन, सल्फोरमिथॉक्सिन एक है अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग। उसके बाद सल्फा सेलेजिन, सल्फा सेलेजिन। तो आउट ऑफ दिस अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग सल्फा सेलेजिन जो है उसका सिल्वर सॉल्ट यूज करते हैं, सिल्वर सल्फा सेलेजिन जो है अगेन ये, सॉरी सल्फा सेलेजिन जो है, सल्फा सेलेजिन इट इज लोकली यूज्ड एज एंटीबैक्टीरियल ड्रग इन द जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन में यूज किया जाता है सल्फा सेलेजिन। इसके बारे में और एक चीज बोलता हूँ मैं आपको, सल्फा सेलेजिन इज ब्रोकन डाउन इन द बॉडी by 2-3 enzymes. First one is amidase. Amidase will break down this bond. ये n डबल वन डी एन जो है यहाँ पे वो बॉन्ड पे बॉन्ड ब्रेक करके ये रिलीज करेगा बाकी का मॉलिक्यूल। सल्फा सेलेजिन इज ब्रोकन डाउन बाय amidase, and again sulfur salicin is also broken down by azo reductase. So azo reductase नाम का एंजाइम होता है, so that also will broken down this bond. Okay, azo reductase present in the gut. Sulfur salicin is used as a antibacterial drug locally in the GIT. मतलब आप टैबलेट लेना है आपको जीआईटी में, आप बोलेंगे जीआईटी से ले रहे सर अंदर, लेकिन इसका एब्सॉर्प्शन ही नहीं होता है, क्यों, वहां पे जाके आपके स्टमक में इंटेस्टाइन में जाके ये ड्रग क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, कहाँ पे, यहाँ पे एन डबल वन जो दिख रहा है आपको यहाँ से ब्रेक डाउन होगा और ये मॉलिक्यूल पूरा रिलीज होगा, एंड दिस मॉलिक्यूल विल नॉट एब्सॉर्ब सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये जो मॉलिक्यूल है सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्सॉर्ब नहीं होता है, ठीक है, और ये जो मॉलिक्यूल उसका भी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है, लेकिन वो सिर्फ लोकली एक्ट करेगा, मतलब वहां पे अगर आपको आपके पेट में वर्म्स है, डायरिया है, तो दैट विल एक्ट ऑन लोकली। ओके, इट इज used in the is reduced in the GIT by azoreductase enzyme, which is present which is produced by intestinal bacteria, ठीक है, याद रखो इसको। नेक्स्ट पॉइंट इज कोड ट्राइमेजोल, कोड ट्राइमेजोल, ठीक है, यहाँ पे हम मिथोक्साजोल, मिथोक्साजोल प्लस ट्राइमिथोप्रिन, सल्फामिथोक्साजोल प्लस ट्राइमिथोप्रिन, मिथोक्साजोल, सल्फानिलामाइड, ये मिथोक्साजोल, ये ऑक्साजोल प्लस मिथाइल सल्फा मिथोक्साजोल, एंड ये ट्राइमिथोप्रिन, ठीक है, मिथोप्रिन प्लस सल्फा मिथोक्साजोल इज नोन एज अ कोड ट्राइमेजोल। हमने देखा था फार्माकोलॉजी में, ट्राइमेजोल इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ योर सल्फा मिथोक्साजोल प्लस ट्राइमिथोप्रिन इन अ फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, दैट इज a 5:1, 2 parts of your sulfamethoxazole and 1 part of your trimethoprim, ठीक है, सो 300 mg प्लस 80 mg। इसके बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है जीपैट 20 में। 300 mg कोट्रामेजोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फामेथोक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रिम इन अ प्रोपोर्शन ऑफ सल्फामेथोक्साजोल रहेगा 300 mg और ट्राइमिथोप्रिम रहेगा 80 mg, ठीक है, सो 80 mg ट्राइमिथोप्रिम, 300 mg सल्फामेथोक्साजोल, so that is known as a code trimazole. Now mechanism of action of your sulfa drugs आपको मालूम है, sulfa drugs क्या एक्ट होते हैं, they have a structural similarity to the para-amino-benzoic acid, पाबा, ठीक है, पाबा के जैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये SO2NH छोड़ दो, यहाँ पे SO2NH की जगह सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड डाल दो, COH, so NH2 benzene COH, that is nothing but the PABA, para-amino-butyric acid, okay, sorry, para-amino-benzoic acid. So these sulfonamides will have a structural resemblance to the para-amino-butyric acid, para-amino-benzoic acid. It's an important component, which is important component the bacteria, जो होता है which is a important component of bacteria. By utilizing the para-amino-benzoic acid or para-amino-benzoic acid, bacteria will convert into dihydrofolic acid.
Dihydrofollic acid will be later converted into tetrahydrofollic acid. Hydrofollic acid is an important intermediate for the one carbon atom ट्रांसफर. टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड होता है वो थायमिडीन सिंथेटेज नाम का एंजाइम होता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है वो. सिंथेटेज मतलब थायमिन का, थायमिडीन सिंथेटेज मतलब वो क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा इसका प्यूरिन्स का. प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स क्या होते हैं, दे आर नथिंग बट द बेसिस फॉर योर डीएनए आरएनए. तो यहाँ पे क्या होगा कि पाबा की जगह सल्फोनामाइड सोर्स में घुस जाएगा, पाबा की जगह, और सल्फोनामाइड घुस गया तो बैक्टीरिया will not able to synthesize the genetic material. Okay, so that's how these drugs will act. So they are the analog of PABA. Actually ये सब हो चुका है आपका. तो there are some important IPAC name. सल्फानिलामाइड का क्या है, 4-amino benzene सल्फोमाइड. देन सल्फासिटामाइड का क्या है, एन सल्फेनिल एस्टामाइड. या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको एन वन एस्टामिडो सल्फानिलामाइड, ऐसा भी लिख सकते हो. सल्फा डायजीन जैसे एन फोर पिरिमिडिन सल्फा सल्फानिलामाइड. सल्फा डिमिडीन का क्या है, एन फोर इंटू 6-डायमिथाइल 2 पिरिमिडिनिल सल्फानिलामाइड. सल्फा डायमिथोक्सिन. ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है वो आईपैक नेम वगैरह, लेकिन फिर भी दिया है मैंने वहाँ पे. नेक्स्ट वन इज फ्लोरोकिनोन्स. फ्लोरोकिनोन. ओके, फ्लोरोकिनोन में आता है आपका एडिक्सिक एसिड, उसमें आता है आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन, देन ओफ्लॉक्सिन, देन लोमिफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, बहुत सारे ड्रग्स हैं. ठीक है, सो दे आर नथिंग बट द क्विनोलोन्स. ओके, क्विनोलोन रिंग रहेगा उसमें. ठीक है, तो क्विनोलिन रिंग क्या होता है कि देखो यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, उसके साथ में दूसरा बेंजीन, दूसरा पिरिडीन है. बेंजीन प्लस पिरिडीन नोन एज अ क्विनोलोन. ठीक है, और यही नाइट्रोजन अगर कार्बन नंबर 2 पे होता है तो उसको बोलेंगे आप आइसोक्विनोलोन. आइसो मतलब नियर, याद रखो, आइसो मतलब नियर. सो बेंजीन टू बेंजीन रिंग प्लस पिरिडीन रिंग, दैट इज नोन एज अ क्विनोलोन, क्विनिन रिंग, सॉरी क्विनिन. बेंजीन प्लस पिरिडीन क्विनिन रिंग, और उसके ऊपर एक कीटोन है ना यहाँ पे, तो इसलिए क्विनोलोन बोलते हैं उसको, ओ यानी लोन. सो क्विनोलोन. अगर ये नाइट्रोजन 2 पोजीशन पे होगा तो उसको बोलेंगे आइसोक्विनोलोन. ओके, so all these fluoroquinones are the derivative of this structure. This is quinolone ring will be there in. Okay, so this is general structure of your fluoroquinones. Now we will see the structure activity relationship of your fluoroquinones. देखो यहाँ पे ये नाइट्रोजन जो है उसको, उसके ऊपर जो है 1 नंबर, नाइट्रोजन इज 1, दिस कार्बन इज 2, दिस कार्बन इज 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this is how they are numbered. Okay, now see here at N1 position optimum substituents are ethyl butyl cyclopropyl difluorophenyl. यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे कितना, क्या कौन सा होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन. So optimum substituent for the fluoroquinones at N1 position is ethyl butyl cyclopropyl or difluorophenyl. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द फ्लोरोक्विनोन जो होते हैं उसमें इसको यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल ही होता है, साइक्लोप्रोपाइल यार डाइफ्लोरोफिनाइल. ओके, डाइफ्लोरोफिनाइल. देन फ्लोरीन एटम addition in the cyclopropyl or 1-butyl result in the improved activity against the gram negative. ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर यहाँ पे N1 पे साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है या फिर ब्यूटाइल ग्रुप है तो उसमें अगर फ्लोरीन एटम ऐड करेंगे तो उसका एक्टिविटी बढ़ जाएगा. सो एडिशन ऑफ फ्लोरीन एटम इन द साइक्लोप्रोपाइल और ब्यूटाइल ग्रुप विल इंक्रीज द एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ओके, नाउ सेकंड पॉइंट क्या है, एट कार्बन नंबर 2 कहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो 2 वाला है ना, 2 at C2 substance are not active. At C2 any substitution, if you try to do any substitution at carbon number 2, they are not active. Okay, methyl hydroxyl group if you try to attach over here, अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप डाल दिया आपने मिथाइलेशन करके या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाल दिया, that is not active. But both N1 and C2 will possess notable activity. अगर यहाँ पे भी है और यहाँ पे अगर रखा तो उसको एक्टिविटी रहेगा, लेकिन इतना भी नहीं रहेगा, नोटेबल रहेगा ऐसे. नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिल फंक्शन, जो यहाँ पे जो कार्बोक्सिल ग्रुप रहता है रिंग्स में, ठीक है, यहाँ पे कार्बन नंबर 3, ठीक है, ये जो है. सो मॉडिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल फंक्शन एट C3 causes decrease in the activity. Any modification at this COH group will result in the decrease in the antibacterial activity. Replacement of carboxylic group with isothiazole group give more active compound.
कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बजाय आइसोथायाजोल रिंग डाल दिया यहाँ पे आपने, दैट विल गिव यू मोर एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। क्यों? बिकॉज आइसोथायाजोल इज अ आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। देन आइसोथायाजोलोक्विनोलोन्स ड्यू टू aromatic character and acidic proton of nitrogen. Okay, then other groups like sulfuric acid, phosphoric acid, tetrazole, esterification will lose the activity. अगर आपने ये कार्बोक्सिल ग्रुप के ऊपर esterification किया या फिर दूसरा कुछ सल्फ्यूरिक एसिड या फिर SOOH या फिर आपने फॉस्फोरिक एसिड डाला यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की बजाय, दैट कंपाउंड विल बी इनएक्टिव, ठीक है। नाउ C4 ऑक्सो, C4 ऑक्सो मतलब ये जो है ना, ये C4 ऑक्सो किनोलोन इज इसेंशियल फॉर एक्टिविटी। ये डबल बॉन्ड वो जो कीटोन ग्रुप रहता है नॉर्मल रिंग में, वो इम्पोर्टेंट है फॉर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। विद 4 थायोक्सो और सल्फोनिल ग्रुप्स लीड्स टू लॉस ऑफ एक्टिविटी। मतलब यहाँ पे यहाँ पे अगर थायोक्सो मतलब सल्फर भी डाल दिया, SO2 डाल दिया, तो दैट इज लॉस ऑफ एक्टिविटी। C5 पोजिशन इनकॉर्पोरेशन इज यूजफुल इन ऑर्डर ऑफ, जो कार्बन नंबर 5 होता है उसके यहाँ पे आप अमाइनेशन कर सकते हो, मिथाइलेशन कर सकते हो, या फिर आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाल सकते हो, या फिर आप हाइड्रोजन ग्रुप डाल सकते हो। सो एट C5 कार्बन नंबर 5 पोजिशन पे यहाँ पे यूजफुल सब्स्टिट्यूशन आर द NH2 CH2 CH3 देन फ्लोरीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप थायोल ग्रुप एंड ये सब कुछ। तो अमाइनो ग्रुप में ज्यादा एक्टिव होगा, उससे कम होगा, मिथाइलेशन में उससे कम होगा, फ्लोरीन में उससे कम, हाइड्रोक्सिल बाद में है। देन कार्बन नंबर 7, ऐड कार्बन नंबर 7 पिपराजिन मोइटी इज इसेंशियल फॉर। पिपराजिन जो है ये कार्बन नंबर 7 आता है आपका। अब देखो वो कार्बन नंबर कौन सा कहाँ पे आता है, देखो कार्बन, ये नाइट्रोजन को उसको 1 बोलेंगे, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 पे क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्टिविटी। ये कीटोन ग्रुप जो है वो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्टिविटी। इफ यू ट्राई टू रिप्लेस दिस कीटोन ग्रुप विद थायोकीटोन, सो दैट विल लॉस द एक्टिविटी, ठीक है। ये जो R5 है उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, वहां पे R5 यहाँ पे, R6 यहाँ पे, R7 यहाँ पे, ये R8, ठीक है। एट C7 पिपराजिन मोइटी इज इसेंशियल फॉर अमाइनो पायरोलिन। ये 7 जो है इसकी, R7 जो है दैट इज C7 पे पिपराजिन मोइटी इज इंपॉर्टेंट, ये पिपराजिन होगा मोइटी। बट अदर अमाइनो पायरोलिन्स आर आल्सो एक्टिव। अमाइनो पायरोलिन्स मतलब अमाइनो पायरोलिन्स मतलब अमाइन नाइट्रोजन इन द यूट्रोसाइल रिंग, बस। जैसे ये पायरेजिन हो गया, पिपराजिन ग्रुप हो गया, तो ये एक्टिव है। देन ये ये क्या होगा, पायरोलिडिन ग्रुप, उसके बाद पिपरिडिन ग्रुप, उसके बाद ये पायरोलिन ग्रुप, पायरोलिन, पिपरिडिन, देन दिस इज पायरोलिन, then this is a piperazine, the pyrrolidine, then piperazine, then this is a pyrroline, ठीक है। सो ये सब भी चलेगा उसके ऊपर, पिपराजिन की बजाय ये भी चलेगा। एट C8 फ्लोरीन ऑफर गुड पोटेंसी अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो कार्बन नंबर 8 है उसके ऊपर अगर फ्लोरीन डालेंगे तो दैट विल गिव यू गुड एक्टिविटी अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगर मिथॉक्सी ग्रुप डालेंगे तो दैट विल गिव यू गुड एक्टिविटी अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी फ्लोरीन, क्लोरीन, मिथॉक्सी ग्रुप, दे आर मोस्ट एक्टिव, देन हाइड्रोजन, देन CF3 ट्राई मिथाइल फ्लोरीन, ट्राइफ्लोरोमिथाइल, देन मिथाइल विनाइल प्रोपाइल, ओके। देन हैलोजन एट फ्लोरीन, क्लोरीन एट C8 improve the oral absorption of drug. Then linking of N1 group to the C8 group with oxygen ring leads to active ofloxacin। में दिखा था linking of N1 group to the C8 position। ये कंपाउंड ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये नाइट्रोजन वाला नंबर है ये 1, इसका है कार्बन, ये जो कार्बन है उसका है 8। सो लिंकिंग ऑफ दिस नाइट्रोजन N1 एंड C8 result in the increased activity will give you ofloxacin। So this is the structure of ofloxacin। ये ofloxacin है that is active। now उसका यूज जो है फ्लोक्रेंस का, so आपने देखा है फार्माकोलॉजी में, they are used in the various kind of infection, okay। for example in the treatment of tuberculosis also they are second line drugs। then joint infections, joint and soft tissue infection,
respiratory tract infection, urinary tract infection, UTI, RTI. Then they are also used in the intestinal infections जैसे डायरिया, डिसेंट्री जो है उसमें भी ओफ्लाजोसिन वगैरह यूज करते हैं। एक यू माइट हैव सीन O2 नाम का टेबलेट है, O2 ओफ्लाजोसिन प्लस ऑर्निडाजोल, दैट इज यूज्ड फॉर इंटेस्टिनल अमीबियोसिस। उसके बाद में देखो यहाँ पे दिया है कुछ आईपैक नेम्स। नेलिडिक्सिक एसिड का आईपैक नेम दिया है 1 इथाइल 1 4 डायटो 7 मिथाइल फॉरऑक्सो 1 8 नेप्थापेरिडिन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा सिप्रोफलोक्सेसिन का नाम दिया है। तो यहाँ पे एक बार सिर्फ एक बार आप पढ़ लेना उसको, बाकी कुछ नहीं है क्योंकि पूछेंगे नहीं आपको ये। फ्लोरोक्विनोन एंटीबायोटिक्स, सो नाइट्रोफिरांटाइन, first one is नाइट्रोफिरांटाइन। नाइट्रोफिरांटाइन इज यूज्ड एज अ यूरिनरी एंटीसेप्टिक। देखो यहाँ पे नाइट्रोफिरांटाइन के बारे में बोल रहा हूँ मैं। नाइट्रोफिरांटाइन इज यूज्ड एज अ यूरिनरी एंटीसेप्टिक। अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, मतलब जब आप रात में ही आपका तकलीफ हो जाता है यूरिन करते समय, that is a infection of urinary bladder and urethra, so it is used as a urinary antiseptic nitrofurantoin। so nitro मतलब because of this nitro, furan मतलब this furan group, nitrofuran, toin मतलब ये not dipene only iron toin group, so nitrofurantoin, ठीक है। then nalidixic acid, so this nalidixic acid is the first member of फ्लोरोक्विनोन एंटीबायोटिक्स। आपका जो क्विनोलोन एंटीबायोटिक्स है उसका फर्स्ट मेंबर कौन सा है, ये नैलिडिक्सिक एसिड, ठीक है, नैलिडिक्सिक एसिड। इसमें सिर्फ EN1 पे क्या है, इथाइल ग्रुप है, और यहाँ बाकी यहाँ पे कोई भी क्लोरीन एटम नहीं है, फ्लोरीन एटम नहीं है, सो दैट्स व्हाई दिस नैलिडिक्सिक एसिड डज नॉट कम्स अंडर फ्लोरोक्विनोन। ये सिर्फ क्या है, क्विनोलिन एंटीबायोटिक है। तो फ्लोरोक्विनोन में क्या आएगा, सब वहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन वगैरह सब आएगा। दिखाता हूँ मैं स्ट्रक्चर आपको, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यू शुड नो। तो बाद में एक नैलिडिक्सिक एसिड जो है दैट वाज कन्वर्टेड लेटर ऑन इन डिफरेंट डेरिवेटिव्स लाइक ऑक्जेनेलिक एसिड, सिनोक्साजिन। तो ये दो मॉलिक्यूल उसके बाद बनाए थे, नैलिडिक्सिक एसिड का ही डेरिवेटिव है। सो दे टू आर ऑक्जेनेलिक एसिड एंड सिनोक्साजिन इज दे आर द डेरिवेटिव ऑफ नैलिडिक्सिक एसिड। ये नैलिडिक्सिक एसिड के ही डेरिवेटिव है। उसके बाद आपका जो मेन फ्लोरोक्विनोन्स होता है वो कौन से, आपको नॉरफ्लोक्सासिन, ठीक है, नॉरफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, इसका डेरिवेटिव नैलिडिक्सिक एसिड का ही डेरिवेटिव है ये प्रोस्टाग्लैंडिन। फ्लोरोक्विनोन्स किसको बोलेंगे, जिसके एटम में क्या होगा, फ्लोरीन होगा। फ्लोरोक्विनोन्स उसको बोलते हैं जो क्विनोनिन एंटीबायोटिक है और उसमें फ्लोरीन एटम है, तो उसको बोलेंगे फ्लोरोक्विनोन्स, ठीक है। जैसे आपका नॉरफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन में क्या होगा, यहाँ पे जो सी, देखो 1 2 3 4 5 6, C6 जो है वहां पे फ्लोरीन है, ठीक है, तो फ्लोरोक्विनोन्स। और जो C7 है उसके ऊपर पिपराजिन है, ठीक है, पिपराजिन। तो ये कॉमन स्ट्रक्चर होगा सब में। जैसे आपको देखो यहाँ पे इथाइल ग्रुप है N1 पे नॉरफ्लोक्सासिन में, तो सिप्रोफ्लोक्सासिन में क्या होगा, साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप। तो ये देखो साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप होगा सिप्रोफ्लोक्सासिन में, बाकी स्ट्रक्चर सब सेम है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें, फिर भी मैं ले रहा है अपने को ले रहा हूँ। देन नेक्स्ट वन इज स्पारफ्लोक्सासिन। फ्लोक्सासिन में क्या है, in addition to your ciprofloxacin, it has one additional fluorine group and it has a methyl substitution on piperazine। तो piperazine C7 के ऊपर piperazine के उसको डाइमिथाइल सब्स्टिट्यूशन डाला है, और C8 जो कार्बन एटम है उसके ऊपर एक और एक फ्लोरीन डाला है। तो बाकी स्ट्रक्चर सेम है, बस इतना ही डिफरेंस है, ये फ्लोरीन वाला आइटम ये एक और ये इतना ही डिफरेंस है, ये तीन डिफरेंस है, येलो वाला है फ्लोरीन CH3 बाकी स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू सिप्रोफ्लोक्सासिन। बस एडिशनल क्या है कि पिपराजिन में डाइमिथाइल डाला है और एक C8 पे एक फ्लोरीन और डाला है, तो उसको बोलेंगे स्पारफ्लोक्सासिन। नेक्स्ट वन इज गैटिफ्लोक्सासिन। नेक्स्ट वन इज गैटिफ्लोक्सासिन। गैटिफ्लोक्सासिन सिमिलर स्ट्रक्चर टू द सिप्रोफ्लोक्सासिन, बस C8 पे मिथॉक्सी ग्रुप है और पिपराजिन का सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप पिपराजिन में, तो यहाँ पे दो थे, यहाँ पे एक ही है, ठीक है। बाकी डिफरेंस क्या है, सिर्फ इतना ही, ये मिथाइल वाला वो मिथॉक्सी ग्रुप है C8 पे। पेफ्लोक्सासिन इज अनदर, सो सिप्रोफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन, स्पारफ्लोक्सासिन, गैटिफ्लोक्सासिन, पेफ्लोक्सासिन एंड लोमेफ्लोक्सासिन, लोमेफ्लोक्सासिन, ठीक है, फ्लोरोक्विनोन्स के ड्रग्स है आपके। नाउ विल सी
द सार ऑफ पेनिसिलिन्स, विल सी द सार ऑफ पेनिसिलिन्स, पेनिसिलिन्स के बारे में देख लेंगे। तो इसके फ्लोरोक्विनोन्स में याद रखो कि आप जो बाकी फार्माकोलॉजी है एक्चुअली कैसा है, अगर आपने फार्माकोलॉजी के जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो देखो पहले, और उसके बाद में ये देखो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले फार्माकोलॉजी देखो सेम चीज़ का, बाद में आप उसका मेडिसिनल केमिस्ट्री देखो। मेडिसिनल केमिस्ट्री में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं, मैंने पहले बोला है कि आपको एक तो पूछेंगे क्लासिफिकेशन, दूसरा है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, या फिर उसका स्ट्रक्चर पूछेंगे, बाकी कुछ नहीं। बस उतना याद रखो कि कोट्राइमेजोल का क्या कॉम्बिनेशन है, 5:1, ट्राइमिथोप्रिम सल्फामेथाजोल, 300 mg सल्फामेथाजोल ट्राइमिथोप्रिम 80 mg, ठीक है, 5:1। और बाद में जो सल्फासेलिसिन बोला हमने, दैट इज अ लोकली एक्टिंग एंटीबैक्टीरियल दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू द जीआईटी बाय आजो रिडक्टेज एंजाइम, इतना याद रखो थोड़ा बहुत। पेनिसिलिन्स, see the penicillins. So penicillins, you know that penicillins are antibacterial drug which was isolated from Penicillium notatum. जो पेनिसिलियम नोटेटम है उसमें से ही आइसोलेट किए थे पहले पेनिसिलिन, ठीक है। बाद में नाउ अडेज कमर्शियली पेनिसिलिन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम योर पेनिसिलियम क्राइसोजिनम, पेनिसिलियम क्राइसोजिनम नाम का जो फंगस है उससे अभी कमर्शियली ऑब्टेन किया जाता है, बट ओरिजिनली इट वाज ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम फंगस, ठीक है। सो बेसिक स्ट्रक्चर फॉर पेनिसिलिन्स, 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड, 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड, ये हो गया आपका बेसिक पेनिसिलिन स्ट्रक्चर। तो क्या है इसमें देखो, दे आर नोन एज अ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, ये जो है, ये जो रिंग है आपका 4 मेंबर रिंग, ठीक है, इसको बोलेंगे लैक्टम रिंग, ठीक है, इसको बोलेंगे अपन लैक्टम रिंग, ओके, लैक्टम रिंग। एंड ये है thiazole ring. So in case of penicillin, your beta lactam ring is attached with the thiazole ring, ठीक है, और इसका जो अटैचमेंट है वो बीटा ओरिएंटेड होता है, इसलिए उसको बोलते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। नंबरिंग देखो, सल्फर इज 1, दिस 2, दिस 3, कार्बोक्सिलिक एसिड दिस 3, देन नाइट्रोजन 4, देन यहाँ पे ये कार्बन 5, और ये हो गया आपका ये कार्बन 6। तो 6 पोजिशन पे क्या है, अमाइनो है, तो 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड, ये देखो एसिड, यहाँ पे आर की जगह ये डाला आपने तो एसिड हो जाएगा। सो 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड एंड पेनिसिलिन्स, ऑल पेनिसिलिन्स आर द डेरिवेटिव ऑफ दिस 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड। अभी यहाँ पे दो एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट वन, सो बीटा लैक्टमेज जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है एक्चुअली, तो उसमें क्या होता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वी यूज टू प्रोड्यूस द one enzyme known as a beta lactamase. Now that enzyme used to break down this bond, the bond between nitrogen and oxygen जो है वो bond break करता है आपका beta lactamase, and that's why these penicillins are not much effective in the bacteria producing beta lactamase. For example, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas aeruginosa will produce beta lactamase enzyme, and that's why penicillins are not effective in the Pseudomonas infection. Okay, now another, those bacteria which will produce amidase enzyme, so amidase will break down this bond, amide bond, ये जो C डबल ओ NH जो बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा कौन, amidase. So those bacteria which will produce amidase enzyme, again penicillins will not be effective in those infections. So amidase will act on this bond, and beta lactamase on act on this bond. This is a penicillin basic structure, 6 amino penicillinic acid, and all the penicillins are derivative of 6 amino penicillinic acid. Now there is another category known as a cephalosporins. Okay, there is only one difference. So instead of this 5-membered ring, thiazole 5-membered ring. So in case of cephalosporins, thiazolidine ring is there. Okay, thiazolidine ring, 6-membered ring with one sulfur and one nitrogen, thiazolidine ring, penicillinic acid and 7 amino cephalosporinic acid. So all cephalosporins are the derivative of this compound. cephalosporin जो है ये इसके डेरिवेटिव, बाकी सब सेम ही है, ठीक है। बस cephalosporin में 6 मेंबर रिंग है और इसमें क्या है 5 मेंबर, यहाँ पे thiazole रिंग है, यहाँ पे thiazolidine रिंग है। अभी नॉमेनक्लेचर ऑफ पेनिसिलिन्स। ओके, सो इसका नॉमेनक्लेचर देखते हैं, उसका डिफरेंट नॉमेनक्लेचर होता है। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट, अकॉर्डिंग टू द केमिकल एब्स्ट्रैक्ट,
दे आर नोन एज फर्स्ट। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट में भी दो तीन नाम है उसका। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट देखो 4 1 एजा बाइसाइक्लो 3.2.O हेप्टेन्स, दिस इज नेम विच इज केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नेम फॉर पेनिसिलिन। ठीक है, ये पेनिसिलिन का केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नेम है। 4 ठीक है, 4 एजा बाइसाइक्लो 3.2.O हेप्टेन्स, एक बार पूछा था आई थिंक सो। देन बेंजील पेनिसिलिन का नाम क्या होगा फिर। अभी देखो पेनिसिलिन्स आर डेरिवेटिव ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ये स्ट्रक्चर मैक्सिमम ड्रग्स में ये कॉमन रहेगा। सिर्फ ये जो आर लिखा है यहाँ पे, ये जो आर है यहाँ पे, इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन होगा। जैसे बेंजील पेनिसिलिन में यहाँ क्या है, बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन। जैसे फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन में क्या है यहाँ पे, बेंजीन रिंग और देन ऑक्सीजन एंड देन दिस स्ट्रक्चर। जो भी डेरिवेटिव पेनिसिलिन का उसके बाद यही पे होगा, यही से चेंज होगा। ठीक है, कुछ कुछ में यहाँ पे भी चेंज होता है। बेंजील पेनिसिलिन का नेम क्या होगा केमिकल एक्सट्रैक्ट के रिगार्डिंग। सो 6 × 2 फिनाइल एस्टामिडो 3D डाइमिथाइल 7 ऑक्सो 4 एज अ बाइसाइक्लो 3,2-O हेप्टेन्स। ये केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नेम है, आईयूपीएसी नेम नहीं है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नेम। आईयूपीएसी नेम अलग होता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज पेनम रिंग। Penum ring and sebum ring. There are two types of ring. In case of penicillins, you will have penum ring, PENAM. In case of your cephalosporin, you will have sebum ring, CEPHM. ठीक है, तो ये जो रिंग है, ये पूरा रिंग, ये इसको बोलेंगे अपन, पूरा रिंग को बोलेंगे पेनम रिंग। ये जो है उसको बोलेंगे सेपम रिंग। सो डिपेंडिंग अपॉन द रिंग, they are known as penicillins and they are known as cephalosporins. Now penicillins are classified into different पेनिसिलिन का भी डिफरेंट क्लास होता है। ठीक है, पेनम रिंग क्या है, अनसब्स्टिट्यूटेड बेसिक स्केलेटन फॉर पेनिसिलिन is a 6 acyl amino 2 dimethyl penum 3 carboxylate, 6 acyl amino 2 dimethyl 3 carboxylate is a penum। मतलब वही 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड, 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड जो है वही है। ठीक है, बाद में क्या, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड लैक्टो रिंग। सो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्ड लैक्टो रिंग फ्यूज्ड थ्रू ए नाइट्रोजन एंड टेट्राहाइड्रल कार्बन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक रिंग, डिफरेंट बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो उसमें पेनिसिलिन आएगा आपको पहला, जिसमें क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ओके, पेनिसिलिन will have beta lactam ring fused with the thiazolidine ring. Then thiamycins में क्या होगा, thiamycins will have beta lactam ring plus beta lactam ring fused with the pyrroline ring. Clavulanic acid में क्या होगा, beta lactam ring plus oxazolidine ring. Cephalosporins में क्या होगा, beta lactam ring plus 6 member dihydrothiazine ring, डायहाइड्रोथायजिन। ठीक है, तो सेफलोस्पोरिन में डायहाइड्रोथायजिन रिंग होता है वो, और पेनिसिलिन में थायाजोलिडीन रिंग होता है। ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ पेनिसिलिन, डिग्रेडेशन मतलब मेटाबॉलिज्म ऑफ पेनिसिलिन और डिग्रेडेशन ऑफ पेनिसिलिन, ये हो गया आपको पेनिसिलिन। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें कौन सा मेटल हो सकता है, पेनिसिलिन। व्हेन यू कीप पेनिसिलिन इन अल्कलाइन मीडियम, ओके, जहाँ पे बेसिक नेचर होगा वहां पे क्या होगा पेनिसिलिन का, इफ यू कीप पेनिसिलिन इन बेसिक मीडियम और अमाइडेज जो है और बीटा लैक्टामेज, अल्कलाइन मीडियम में अगर पेनिसिलिन रहेगी या फिर बीटा लैक्टामेज, यहाँ पे अल्कलाइन मीडियम की जगह बीटा लैक्टामेज भी, और बीटा लैक्टामेज, अल्कलाइन मीडियम और बीटा लैक्टामेज दोनों भी क्या करेंगे, सो दे अल्कलाइन मीडियम और बीटा लैक्टामेज विल डाइजेस्ट द पेनिसिलिन एंड दे विल ओपन दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे। सो पेनिसिलिन विल बी कन्वर्टेड इनटू पेनिसिलोइक एसिड, पेनिसिलोइक एसिड, देखो पेनिसिलोइक एसिड अपॉन द एक्शन ऑफ बेसिक मीडियम और बीटा लैक्टामेज। बीटा लैक्टामेज और अल्कलाइन मीडियम अगर होगा तो पेनिसिलिन का क्या होगा, पेनिसिलोइक एसिड होगा, एंड दिस पेनिसिलोइक एसिड इज इनएक्टिव। यहाँ पे देखो बॉन्ड ओपन हो गया ना, तो ये इनएक्टिव होगा। ठीक है, नाउ पेनिसिलिन इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, पेनिसिलिन इन एसिडिक मीडियम क्या होगा उसका, पेनिलिक एसिड, पेनिसिलिन इन एसिडिक मीडियम विल बी कन्वर्टेड इनटू पेनिलिक एसिड। ये यहाँ पे देखो ये ब्रोकन डाउन हो गया। ठीक है, ये ब्रोक डाउन हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया। तो पेनिलिक एसिड एंड पेनिसिलिक एसिड, तो ये डिग्रेडेशन प्रोडक्ट एक बार पूछा था। पेनिसिलिन अगर एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो क्या होगा, पेनिसिलिन पेनिसिलिन अगर बेसिक मीडियम में डाले तो क्या होगा,
पेनिसिलिन अगर बीटा लैक्टामेस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया में पेनिसिलिन इफेक्टिव क्यों नहीं है? बिकॉज बीटा लैक्टामेस विल ब्रेक डाउन द बॉन्ड बिटवीन द लैक्टम रिंग। ओके, जो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा आपका कौन? बीटा लैक्टामेस एंजाइम, एंड दैट्स व्हाई पेनिसिलिन्स आर इनइफेक्टिव इन केस ऑफ बैक्टीरिया व्हिच आर प्रोड्यूसिंग बीटा लैक्टामेस एंजाइम। ठीक है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ पेनिसिलिन। तो इसमें एक दूसरा एक फर्स्ट स्ट्रक्चर एक्टिविटी ऑफ पेनिसिलिन, 6 असाइल साइड चेन। जो साइड चेन होता है आपका ये इधर का, यहाँ पे ये आर की जगह, ठीक है, असाइल साइड चेन, ये उसका मॉडिफिकेशन देखो, 6 असाइल साइड चेन सब्स्टिट्यूशन ऑन प्राइमरी अमाइन, जो NH सी डबल NH जो है, सो उसके 6 असाइल साइड चेन सब्स्टिट्यूशन ऑन प्राइमरी अमाइन should be electron withdrawing group. Electron withdrawing group should be there. So should be electron withdrawing group which decreases the electron density on the side chain and protect the molecule from acid degradation. Acid में क्या होता है आपने देखा है ना कि वो जो CONH बॉन्ड है वो वहां से रीअरेंजमेंट होता है, डिग्रेड होगी। सो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होगा तो वो प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द डिग्रेडेशन बाय एसिड। Substitution on alpha carbon atom such as amino substitution on alpha carbon atom or chloro substitution or guanidino substitution on alpha carbon atom will increase the resistance toward the acid and penicillin G because see दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे जो कार्बन आएगा वो अल्फा कार्बन आएगा, ये आर की जगह जो कार्बन आइटम आएगा वो अल्फा कार्बन आइटम आएगा। ये अल्फा कार्बन आइटम पे अगर सब्स्टिट्यूशन करेंगे अपन कौन सा अमाइनो ग्रुप या फिर आप क्लोरो ग्रुप, so that will increase the देखो further substitution on alpha carbon such as amino in case of ampicillin, then chloro group or guanidino group further increases the resistance toward the acid। मतलब अगर उसके ऊपर अमाइनो ग्रुप डालेंगे या फिर गुआनिडीनो या फिर क्लोरो तो वो पेनिसिलिन जल्दी ससेप्टेबल नहीं होगा एसिड डिग्रेडेशन के लिए। ओके, एंड अल्कली बोथ, so substitution on alpha carbon atom like amino, guanidino or chloro will increase the will decrease the susceptibility of penicillin towards the acid or alkali। जैसे पेनिसिलिन जी जो है आपका, पेनिसिलिन जी इज ससेप्टेबल फॉर एसिड एंड अल्कली बोथ। पेनिसिलिन जी का डिग्रेडेशन होता है, जैसे यहाँ पे बेंजीन हो गया तो वो है पेनिसिलिन जी। देन इंक्रीज इन द latitude bearing acyl amino side chain by acylation of 6 amino penicillinic acid की better activity। यहाँ पे acylation अगर करेंगे बाद में बेंजीन का तो आपको better activity। then substitution on alpha carbon atom aryl or alkyl in a side chain result in the increased activity and oral absorption। substitution on alpha aryl or alkyl group, मतलब यहाँ पे जो अल्फा है इसके ऊपर अगर सब्स्टिट्यूशन करेंगे या आर की जगह कार्बन, इमेजिन कीजिए कि ये आर की जगह कार्बन है उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, उसके नीचे अगर अराइल मतलब बेंजीन रिंग या फिर कोई हेटेरोसाइक्लिक रिंग या फिर अल्काइल इन द साइड चेन रिजल्ट इन द इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी एंड ओरल एब्सॉर्प्शन। इसके ऊपर अराइल सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ओरल एब्सॉर्प्शन बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। सब्स्टिट्यूशन ऑफ बल्की ग्रुप्स ऑन अल्फा कार्बन एटम इंक्रीजेस द बीटा लैक्टमेस रेजिस्टेंस। यहाँ पे वही ना कि अगर आपको यहाँ पे अल्फा कार्बन एटम पे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा करेंगे आप यहाँ पे जैसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का, हेटेरोसाइक्लिक रिंग का, so that will also become resistant to the beta lactamase। जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मिथिसिलिन, निपासिलिन, ऑक्सासिलिन, all these drug will have substitution at alpha carbon atom like a benzene ring, and that's why they are a penicillinase resistance। Methicillin, nipaciline and nipsilin and oxacillin, cloxacillin, dicloxacillin, all these drugs will have aromatic ring attached to the side chain with both ortho and substitution responsible for the penicillinase resistance। जब स्ट्रक्चर दिखाऊंगा मैं आपको बोल दूंगा। नाउ पेनिसिलिन्स के आइसोमर्स होते हैं डेक्स्ट्रो आइसोमर्स एंड लिवो आइसोमर्स। सो आउट ऑफ दीज याद रखो डेक्स्ट्रो आइसोमर्स आर 2 to 8 times more active than लिवो आइसोमर्स। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एमोक्सिसिलिन, कि एमोक्सिसिलिन का डेक्स्ट्रो आइसोमर जो है वो ज्यादा एक्टिव है, लिवो नहीं। तो
इसमें आइसोमेरिज्म होता है पेनिसिलिन में, और डेक्स्ट्रो जो है, डेक्स्ट्रो डेरिवेटिव ऑफ पेनिसिलिन, दे आर एक्टिव एज कम्पेयर टू लीवो। ठीक है, याद रखो, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है आपका, कि बहुत सारे बुक्स में ये नहीं दिया है, ये मैं 2-3 बुक्स रेफर करके ये सब सार निकाले। Then polar or ionized group at a alpha position of side chain of benzyl penicillin increases the activity against the gram negative bacilli. अगर पोलर ग्रुप डालेंगे वहां पे, जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप, SO2 ग्रुप, ठीक है ऐसा, तो वो क्या करेंगे, ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट में एक्टिविटी इंक्रीज करेंगे। फॉर एग्जांपल एम्पिसिलिन, कार्बेनिसिलिन, कार्बेनिसिलिन में एसिड ग्रुप है, COH ग्रुप है। If acyl side chain is replaced by hydroxymethyl group, gives increased activity against the gram negative. If acyl side chain replaced by hydroxymethyl group, gives increased activity against gram negative. Introduction of C6 alpha methoxy group give beta lactamase resistant compound. N acylated ampicillin uridopenicillins are active against pseudomonas. ठीक है, जो यूरिडोपेनिसिलिन होता है आपका, जैसे आपका दिखाऊंगा बाद में स्ट्रक्चर्स वगैरह, यूरिडोपेनिसिलिन दे आर एक्टिव अगेंस्ट द स्यूडोमोनास। कि उसमें क्या होता है कि यूरिडोपेनिसिलिन में C6 कार्बन जो है अल्फा मेथॉक्सी ग्रुप, उसमें एन असाइटाइलेटेड एम्पली दिखा रहा हूं मैं स्ट्रक्चर आपको। ठीक है, स्टेरिफिकेशन ऑफ COOH ग्रुप, जो कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है 3 पोजीशन पे, उसका स्टेरिफिकेशन करेंगे। सो स्टेरिफिकेशन ऑफ COH at C3 रिजल्ट इन द प्रोड्रग्स, और उसको स्टेरिफाई करेंगे तो प्रोडक्ट विथ इंक्रीज्ड लिपोफिलिसिटी एंड एसिड स्टेबिलिटी। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ पिवाम्पिसिलिन एंड बिकाम्पिसिलिन, ये जो पिवाम्पिसिलिन है और बिकाम्पिसिलिन है, these आर द प्रोड्रग ऑफ एम्पिसिलिन। जो एम्पिसिलिन है उसका स्टेरिफिकेशन करके पिवाम्पिसिलिन बनता है या फिर बिकाम्पिसिलिन बनता है। बोथ दीज आर द प्रोड्रग ऑफ एम्पिसिलिन, याद रखो। In vitro degradation can be prevented by keeping the penicillins in the pH 6 to 8. More lipophilic side chain leads to more protein binding. Example ampicillin. ठीक है, सो इसका डिग्रेडेशन अगर आपको प्रिवेंट करना है तो इन विट्रो, मतलब इन टेस्ट ट्यूब, if you can prevent the degradation of penicillin by keeping it in a pH 6 to 8. Okay, more lipophilic side chain in the penicillin लीड्स टू मोर प्रोटीन बाइंडिंग। मतलब जो साइड चेन है 6 अमीनो पेनिसिलिन एसिड के बाद में, अगर उसमें लिपोफिलिसिटी ज्यादा है तो दोज कंपाउंड विल बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन मोर। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एम्पलीसिलिन लिपोफिलिसिटी कम है तो एम्पलीसिलिन 25% बाउंड करता है प्लाज्मा प्रोटीन को। फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन में फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन में लिपोफिलिसिटी ज्यादा है तो दैट विल बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन इन 75%। नाउ पेनिसिलिन का क्लासिफिकेशन जो होता है उसमें 2-3 क्लासिफिकेशन है। एक तो नेचुरल नेचुरल ड्रग्स और सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक ऐसा। नेचुरल आता है आपको बेंजाइल पेनिसिलिन, सेमी सिंथेटिक आता है आपको फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, एंड सिंथेटिक आता है बाकी सब क्लोक्सिसिलिन, डाइक्लोक्सिसिलिन, एम्प्लिसिलिन वगैरह। ठीक है, ये ऐसा क्लासिफिकेशन है। उसके बाद दूसरा है पेनिसिलिनेज ससेप्टिबल पेनिसिलिन। पेनिसिलिनेज जो एंजाइम होता है उस उसको ससेप्टिबल, मतलब पेनिसिलिनेज एंजाइम जो है इसको ब्रेक डाउन करेगा। तो एग्जांपल बेंजील पेनिसिलिन, फर्स्ट वन इज बेंजील पेनिसिलिन। इट इज आल्सो नोन एज पेनिसिलिन जी। याद रखो, बेंजील पेनिसिलिन इज नोन एज अ पेनिसिलिन जी, इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, बेंजील पेनिसिलिन में क्या है, देखो सिर्फ ये फिनाइल रिंग है, एक्स्ट्रा क्या है, सिर्फ फिनाइल रिंग। ये जो है कॉमन स्ट्रक्चर होगा आपका। ठीक है, ये कॉमन स्ट्रक्चर होगा है, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड, इट इज अ कॉमन। और ये आर जो है दैट इज सब्स्टिट्यूट। अगर यहाँ पे बेंजीन डालेंगे तो उसको बोलिए बेंजाइल पेनिसिलिन और पेनिसिलिन जी। देन नेक्स्ट वन इज फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, और उसको बोलते हैं अपन पेनिसिलिन वी। फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, देखो यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन का इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, बाकी सब स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ फिनॉक्सी फिनॉक्सी नहीं है। फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, इट इज नोन एज पेनिसिलिन वी। और एक होता है पेनिसिलिन एच, बहुत सारा होता है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम ये 2 याद रहने चाहिए आपको। देन पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, रेजिस्टेंस कौन से, फर्स्ट वन इज मिथिसिलिन।
फर्स्ट वन इज मिथिसिलिन। इसमें क्या डिफरेंस है देखो, यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर है, बस ऑर्थो पोजिशन पे मिथॉक्सी ग्रुप डाला है, ऑर्थो पोजिशन पे मिथॉक्सी ग्रुप डाला है, ठीक है। सो इंक्रीज इन द लिपो increase in the lipophilicity will increase the beta lactamase activity. So methicillin, penicillin is resistant penicillin. नेक्स्ट क्या है आपका क्लोक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, क्लोक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन एंड फ्लूक्लोक्सासिलिन, ठीक है। तो इसमें ये तो कॉमन स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ऑक्सासिलिन में क्या होगा, यहाँ पे ऑक्साजोल ग्रुप है, ठीक है। ऑक्साजोल, ऑक्साजोल प्लस बेंजीन अटैच है, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सासिलिन। अभी क्लोक्सासिलिन में क्या है, क्लोक्सासिलिन में ये जो यहाँ पे जो क्लोरीन है और एक जगह पे हाइड्रोजन, डाइक्लोरोसिलिन में यहाँ दोनों जगह पे R1 R2 डैश पे क्लोरीन है डाइक्लोक्सासिलिन में। ये हो गया आपका ऑक्सासिलिन का स्ट्रक्चर, ये बेसिक स्ट्रक्चर है ऑक्सासिलिन। क्लोक्सासिलिन में एक क्लोरीन है, डाइक्लोक्सासिलिन में एक डाइक्लोक्सासिलिन में डाइक्लोक्सासिलिन में दोनों क्लोरीन ग्रुप है, और फ्लूक्लोक्सासिलिन में एक क्लोरीन है एक क्लोरीन है। तो आपको ये स्ट्रक्चर इजीली आपको याद आना चाहिए। तो ऑक्सासिलिन में ये ऑक्सासिलिन का स्ट्रक्चर है, क्लोक्सासिलिन में एक क्लोरीन है, डाइक्लोक्सासिलिन में दो क्लोरीन है दोनों जगह पे, और फ्लूक्लोक्सासिलिन में एक क्लोरीन है एक क्लोरीन है। दैट इज अ पेनिसिलिन इज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। नेक्स्ट आता है निफासिलिन। निफासिलिन में नैप्थेलिन रिंग है, याद रखो नैप्थेलिन रिंग है निफासिलिन में, एन फॉर नैप्थेलिन, एन फॉर नैप्थेलिन, मिथॉक्सिनैप्थेलिन, ठीक है। मिथॉक्सिनैप्थेलिन रिंग है इसमें निफासिलिन। So all these are the penicillin resistance. Now amino penicillins. अभी देखो ये जो अल्फा कार्बन एटम था, this is alpha carbon atom, and if you substitute alpha carbon atom with amino group or carboxyl group, so that will increase the acid resistance as well as alkali resistance as well as beta lactamase resistance. So this is the structure of ampicillin. ampicillin क्या होगा, एम्पलीसिलिन में जो आर यहाँ पे कुछ नहीं है, ये स्ट्रक्चर आप भूल जाओ, आर है यहाँ पे, तो ये स्ट्रक्चर होगा एम्पलीसिलिन का। बेंजिल पेनिसिलिन के, बेंजिल पेनिसिलिन में जो पहला कार्बन है उसके नीचे अमीनो ग्रुप लगा दो, हो गया आपका एम्पलीसिलिन। एमोक्सिसिलिन में क्या है कि ये एमोक्सिसिलिन के ऊपर पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाल दो, सो हो गया यहाँ पे अमोक्सिसिलिन, है ना। यहाँ पे पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो हो गया अमोक्सिसिलिन। सो इसमें क्या रिलेशन है, सिर्फ डिफरेंस है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। सो एमोक्सिसिलिन इज अ मेटाबोलाइट ऑफ एम्पलीसिलिन, ठीक है। सो एम्पलीसिलिन जब देते हैं तो बॉडी में जाके उसको हाइड्रोक्सिलेशन होता है यहाँ पे, तो बाद में एक मेटाबोलाइट है, एमोक्सिसिलिन इज अ मेटाबोलाइट ऑफ एम्पलीसिलिन, याद रखो। देन बिकम्पिसिलिन, नेक्स्ट वन इज बिकम्पिसिलिन। तो एम्पीसिलिन का ही डेरिवेटिव है बिकम्पिसिलिन, सेम स्ट्रक्चर है एम्पीसिलिन का, सिर्फ बाकी यहाँ पे क्या है इस्टरिफिकेशन क्या है। सो इस्टरिफिकेशन ऑफ एम्पीसिलिन एट C3 कार्बन, सार में देखा था इस्टरिफिकेशन ऑफ एम्पीसिलिन एट C3 कार्बन रिजल्ट इन द प्रोड्रग। सो बिकम्पिसिलिन इज अ प्रोड्रग ऑफ एम्पीसिलिन। तो बॉडी में जाके यहाँ से कट होगा, यहाँ पे HCOH बनेगा, बस। प्रोड्रग क्यों बनाते हैं अपन, टू इंक्रीज द बायो अवेलेबिलिटी, टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग इन विवो एज वेल एज इन विट्रो। जैसे एम्पलीसिलिन अगर ऐसा यूज करेंगे तो बाहर स्टोरेज कंडीशन पे खराब हो जाएगा, लेकिन बिकम्पिसिलिन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इसको अटैचमेंट से, सो इट इज अ प्रोड्रग। बिकम्पिसिलिन, पिवाम्पिसिलिन, तो बोथ आर द प्रोड्रग। देन कार्बोक्सीपेनिसिलिन, नेक्स्ट वन इज अ क्लास इज अ कार्बोक्सीपेनिसिलिन। इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो भी एम्पलीसिलिन में अमाइनो ग्रुप था, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आएगा, उसको बोलेंगे कार्बोक्सीपेनिसिलिन। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बेनिसिलिन। कार्बेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है ये, यहाँ पे सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड है, बाकी सब स्ट्रक्चर सेम है, कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजिल पेनिसिलिन ड्रॉ करो, उसके जो बेंजिल के आगे जो कार्बन है उसके नीचे से वो एसिड डाल दो, उसको बोलेंगे कार्बेनिसिलिन। अगर यहाँ पे अमाइनो ग्रुप डाल दिया तो उसको बोलेंगे एम्पलीसिलिन, अगर अमाइनो ग्रुप को यहाँ पे OH ग्रुप डाल दिया तो उसको बोलेंगे एमोक्सिसिलिन, ठीक है। यहाँ पे इस रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको बोलेंगे पिवाम्पिसिलिन और बिकम्पिसिलिन। ऐसा है, सिंपल है, एकदम सिंपल है, आपको समझ में आएगा। ओके, नाउ दिस कार्बोक्सीपेनिसिलिन में कार्बेनिसिलिन आएगा, उसके बाद में टाइकारसिलिन आएगा, टाइकारसिलिन। टाइकारसिलिन में सिर्फ यहाँ पे बेंजीन रिंग की बजाय थायाजोल रिंग है, टाइकारसिलिन, थायाजोल रिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आएगा यूरिडोपेनिसिलिन। यूरिडोपेनिसिलिन जो अमाइनो ग्रुप था एम्पलीसिलिन का, एम्पलीसिलिन का अमाइनो ग्रुप जो है साइड चेन में
उसको मॉडिफाई करेंगे, उसको फिर से यहाँ पे ये डालेंगे क्या, जैसे यहाँ पे देखो ये जो है इट इज हेट्रोसाइक्लिक रिंग। हेट्रोसाइक्लिक रिंग अमीनो ग्रुप में हेट्रोसाइक्लिक रिंग डालेंगे अमीनो ग्रुप के नीचे, और तो उसका स्टेबिलिटी बीटा लैक्टमेज और एसिड रेजिस्टेंस और अल्काइल रेजिस्टेंस वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल इनके साथ इरिडोपेनिसिलिन, एजोसिलिन, और उसका स्पेक्ट्रम भी बढ़ जाता है। ठीक है, एजोसिलिन, एजोसिलिन, यूरिडोपेनिसिलिन। इसके बाद में आता है उसका एग्जांपल कार्बोक्सी पेनिसिलिन, कार्बोक्सी पेनिसिलिन। तो ये कार्बेनिसिलिन हो गया, ट्राइक्लोजिन हो गया, यूरिडोपेनिसिलिन, ये डबल हो गए हैं। उसके बाद में कुछ यहाँ पे अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, नेम एंड आईपैक नेम ऑफ कंपाउंड, बाकी कुछ नहीं। सो दिस वाज